Evening, friends. Today, ITCA family has decided to do program certain things which is not earlier happening that we need after lockdown. जैसा अभी हमारे discussion में भी आ रहा था कि after lockdown or during lockdown we feeling that कि the health part is very much deteriorating of each and every member, not only due to lethargic I will say with lethargic day schedule, but also due to this corona pandemic, mental pressure, and all these issues. So to discuss on that and to guide us to get guidance how to live a life before corona or after corona, ITCA has invited today our own Dr. Ashwini Gautam ji, who is very much known to our fraternity and all members. We welcome on behalf of ITCA family to Dr. Ashwini Gautam ji. Friends, our main motto is to achieve our health through yoga, meditation, and happiness. And Ashwini Gautam ji is not only expert in that, but in such a simple language and simple living, how we can change our lifestyle. Dr. Ashwini Gautam ji will tell all of us. So today's program is designed for the members of ITCA. I welcome all the members present in this program and who will going to get benefit for their health after today's deliberation. I welcome all the members. I welcome our senior member Kambosa Ashok ji and other senior member Rajiv Sharma ji, Rakesh Grover ji, so that all are who have joined from their busy schedule for this program. Ashwini Gautam ji, I want to tell you that ITCA is a Indirect Tax Consultant Association. It is a you can say GST practitioners of Ludhiana. Mostly we are chartered accountants. Rather we can say we all are chartered accountants. And sitting day by day, whole day from morning 10 to 8 in the offices on a single chair. बीच में 5-4-10 मिनट भी हमें उठना पड़ जाए. Otherwise our day schedule is like सारा दिन आज की डेट में हम कंप्यूटर को देखते हैं और पढ़ाई भी इसमें हो गई है तो सारा दिन ही हमारा कंप्यूटर और मोबाइल पे निकलता है क्योंकि ई इरा में जो इलेक्ट्रॉनिक इरा में चल रहा है सारा सिस्टम हमारा तो 80% क्या हम कह सकते हैं 99% वर्क इज जस्ट टू सी माय कंप्यूटर स्क्रीन होल डे. तो प्लीज उसके बारे में भी अश्विनी जी आप अपने लेक्चर में जरूर डेलिब्रेशन देंगे ही. So no more standing. I request our president Sameer Gupta ji to please welcome all members and especially Dr. Ashwini Gautam ji on behalf of ITC. Sameer ji, please. Thank you, Vishal ji. Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. I extend my warm welcome to each one of you on our virtual meeting regarding maintaining health during COVID and post-COVID with the help of yoga, meditation, diet and home remedies. Last week, we have released second edition of ITSA newsletter 2021 to enlighten our ITSA Parivar on latest changes in GST. From this dais, I will invite all of you to kindly share articles and write-ups on important topics of GST with newsletter committee so that the other members of the association are benefited. We all are aware of this fact that the COVID-19 virus quickly spreads around the world. Unfortunately, misinformation related to COVID-19 also gets created and spreads like wildfire. Such misinformation has caused confusion among people, disruptions in society, and even deadly consequences. In health problems, immunity is an essential prerequisite to facilitate the eradication of infections, disturbed immune systems, and recognized to be the characteristic feature in severely affected cases of COVID-19 infection. Meditation and yoga may potentially enhance our immunity. The spread of COVID-19 and the tragedy we all are facing today makes us search for answers and course corrections urgently needed for the very survival of human beings. This has raised many questions on our knowledge base. That is why we have requested our own Dr. Ashwini Gautam ji from Chandigarh, who is naturopath and yoga expert, to deliver
to deliberate on achieving the health through yoga, meditation, and home remedies. I am sure that members of our ITSA Parivar will be highly benefited after attending this Zoom meeting. Our foremost priority is health of each and every member of ITSA Parivar. Yoga takes no payment but pays you fitness in return. We have to apply this slogan for a healthy life. योग है स्वास्थ्य के लिए क्रांति, नियमित योग से जीवन में हो सुख शांति. Thank you all. Thank you very much. Vishal ji, over to Vishal ji. Thank you, Sumit ji. This is a need of hour, and every member required this guidance from Ashwini ji. So I request C.A. Sahil Gupta to please introduce Ashwini Gautam ji to house, so that we know very less about Ashwini ji, but after listening from Sahil ji, I think all members of our fraternity will be fan of Ashwini Gautam ji. Sahil ji, please. Thank you, sir. Thank you, Vishal ji. Good evening, everyone. It is my immense pleasure to introduce renowned naturopath Dr. Ashwini Gautam ji from Chandigarh. He is the founder of an organization named Orayu Healthcare, which is started by him with the motive to spread good health and happiness. Further, Orayu deals in various healthcare products and different courses with the motive to spread core knowledge of healthy lifestyle. Dr. Ashwini Gautam ji is the one who not only cure people with his vast knowledge, but also enlighten and heal them spiritually. He has been practicing in this field from past 15 years. Further, he is also a yoga expert. He has been training people from last 20 years with tremendous results. He even has worked with Patanjali for 8 years as Punjab Conveyor. During the pandemic, he has helped numerous patients to recover from chronic and prolonged illness through daily online live sessions on Facebook. It is quite evident from the testimonial and reviews on his page. One can also find him on the different social media platforms like YouTube, Instagram, and Facebook. So now, not standing between you and our worthy speaker, Dr. Ashwini ji, I invite him to enlighten our members with his knowledge. Welcome, Ashwini ji. Thank you so much, sir. Thank you. And thank you all of you. तो हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन. तो जैसे जैसे जो आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं वो मैंने नोट डाउन भी की. इस बारे में हम चर्चा करेंगे. क्या विशाल जी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सही आ रही है. बिल्कुल ठीक है. चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो डेली रूटीन की हेल्थ है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं. और जो अभी जो दौर चल रहा है ना, ये पोस्ट कोविड वाला है लगभग, क्योंकि एक जो सेकेंड वेव आई थी अब वो उतार पर है लगभग. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना पोस्ट कोविड में, सबसे पहले आपको अपना टूथब्रश चेंज कर देना है, जो कि हम ध्यान ही नहीं रख पाते. आप समझ पा रहे हैं? जिसको भी कोविड हुआ था, फर्स्ट स्टेप उनका ये है, जब भी नेगेटिव आ जाते हैं अपना टूथब्रश चेंज कर देना है, ताकि वो जो पुराना ब्रश है उसमें जो बैक्टीरिया रह गया वो दोबारा से आपको टच ना कर पाए. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, काले चने का सूप. अभी हम डाइट की बात कर रहे हैं. काले चने का सूप डेली 100 ml आपको लंच टाइम पे या इवनिंग, जो टी टाइम हम जिसको बोलते हैं, उसमें आपने पीना ही पीना है, क्योंकि एक बेस्ट लंग्स टॉनिक अगर है वो काले चने का सूप. और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ग्रेप्स. तो इन दो चीजों का जरूर ध्यान करेंगे. मान लीजिए किसी को फ्रेश ग्रेप्स नहीं मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप किशमिश लें या मुनक्का लें, सोक करके आप पानी में 10 या 15 दाने डेली आपने खाने ही खाने. थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड या पोस्ट कोविड एक न्यूट्रिशन वाइज आपको जिंक बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए. तो जो आप सप्लीमेंट के सहारे लेंगे, ठीक है, वो नो डाउट जिंक की कमी पूरी करता है, बट नेचुरल
इज द बेस्ट ऑलवेज, ये हमेशा याद रखिए। तो उसमें आपने जो अनार है एम्प्टी स्टमक वो फिक्स कर लेना है। अनार से अच्छा जिंक आपको किसी भी सप्लीमेंट में नहीं मिलेगा। तो कम से कम मान लीजिए पोस्ट कोविड या ये दौर जो चल रहा है इसमें 1 महीना लगातार आपने एम्प्टी स्टमक अगर अनार इंटेक कर लिया तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हो जाती है। बीच में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है आप नोट डाउन कर लीजिए, बाद में हम सारे क्वेश्चन ले लेंगे। तो ये कुछ बात जो मुझे अभी अभी आप सबकी बातें सुनकर लगा कि मुझे आपसे ये बातें जरूर शेयर करनी चाहिए। दूसरा, कंडीशन चाहे कोई भी हो, प्री हो, ड्यूरिंग हो या पोस्ट कोविड हो, जो एक रूटीन है हमारे दिन का वो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको एक चीज तो फिक्स करनी पड़ेगी। देखिए आप सब सीए हैं तो सबका हिसाब रखते हैं, पर अपना खुद का भी हिसाब रखना ही पड़ेगा आपको, अपनी बैलेंस शीट ना बिगड़ जाए। तो इस बात का हमें बहुत जरूरी ध्यान रखना है। तो सुबह जैसे आप उठते हैं, हम सुबह से शाम तक का एक रूटीन अगर डिस्कस कर लेते हैं तो आपको मुझे लगता है बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6 to 7 AM आप उठते हैं, तो उठकर पानी पीना है, हल्का ल्यूकवार्म लीजिए। अगर आपको गले में ज्यादा ठंडा नहीं लगता तो नॉर्मल ले सकते हैं, क्योंकि अब सीजन गर्मी का आ गया है। अब बातें छोटी छोटी सी हैं, जैसे सुबह एम्प्टी स्टमक मटके वाला पानी नहीं पीना, वो गले को पकड़ लेता है। अब ये बातें इस तरह से फैल जाती हैं सोसाइटी में ना कि मटके का पानी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सुबह उठते ही जब आपका शरीर सोया हुआ है पानी आपको चेतन अवस्था में लेकर जाता है, लेकिन अगर वो मटके का पी लेते हैं बहुत कफ कारक होता है सुबह सुबह, तो वो गला पकड़ लेगा। इसलिए सुबह मटके का अवॉइड कर दीजिए। आप नॉर्मल स्टील के बर्तन में रखा हुआ पानी या आरओ से लिया हुआ पानी, वो ल्यूकवार्म या नॉर्मल टेम्परेचर आप ले सकते हैं। सेकंड जो आपने इनटेक करना है वो हमारा डिस्कस हो चुका है, वो अनार। अगर आपने इम्यूनिटी को अपनी बेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। थर्ड ये है, जब भी आप लंच या पहले उससे हम ब्रेकफास्ट की अगर बात करें, क्योंकि समीर जी ने बोला कि डाइट पर जरूर जिक्र करना है, तो ब्रेकफास्ट में आपके अगर कोविड को हम ध्यान में रखें तो उसमें क्या होता है कि कार्ब्स आपको कम लेने हैं। मैं उसका लॉजिक भी आपको क्लियर कर देता हूं। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस अगर हमारे शरीर में है तो वो डाइट पर जिंदा रहता है, और उसकी डाइट होती है कार्बोहाइड्रेट, मीठा। तो उसका इंटेक आप कम कर देंगे। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो उसमें क्या करेंगे, आप कार्ब्स को जितना कम कर सकते हैं और प्रोटीन का इंटेक जितना बढ़ा सकते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और जो वायरस या बैक्टीरिया है उसकी डाइट बंद हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं? तो रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, और पोस्ट कोविड भी रिकवरी में बहुत ज्यादा। हाँ, अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है फिर आपको कार्ब्स जरूर लेने हैं। फिर शरीर को रिकवर करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। उसमें आप दलिया ले सकते हैं, नॉर्मल चपाती, दाल, चावल, जो भी, ठीक है। तो अब जब ड्यूरिंग चल रहा है तो उसमें अगर हम डाइट का, अब इसका मतलब ये नहीं कि एलोपैथी डॉक्टर के संपर्क में नहीं रहना है, वो ट्रीटमेंट आपका सेपरेट चलता रहेगा। हम डाइट से क्या हेल्प ले सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज से क्या हेल्प ले सकते हैं, मुझे लगता है आज का सेशन अगर इस तरह से हो जाए तो हमारा ये सेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर इतनी जानकारी हमें मिल जाए कि डाइट से हम किस तरह से हेल्प, क्योंकि अभी ड्यूरिंग कोविड ये नंबर हमारे फेसबुक या ऑनलाइन रहते हैं, तो लगभग 200 कोविड पेशेंट से अगर टेलीफोनिक कंसल्टेशन हुआ तो उसमें ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा, जो डाइट कॉन्शियस थे, ये क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी हम सबको ये काम आने वाली बात है, जो डाइट कॉन्शियस थे, जो हेल्थ कॉन्शियस थे,
वो इजीली रिकवर हो गए, और जिनका कोई रूटीन नहीं था, जिनका कुछ खाने पीने का हिसाब नहीं था, वो उलझ गए। मुझे लगता है आप बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक प्रोन एरिया बन जाता है हमारी बॉडी में अगर हम डाइट का, अपने रूटीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इस बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है वो नोट डाउन जरूर करें, ताकि हम अच्छे से एक दूसरे की हेल्प कर पाए। तो ब्रेकफास्ट में फिर आप क्या ले सकते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट हमें कम करना है? तो उस टाइम आप वेजिटेबल्स लेंगे। सुबह एक अनार के बाद फिर बेशक आप बड़ा बाउल ले लीजिए, बल्क क्वांटिटी में ले लीजिए वेजिटेबल। पोटैटो नहीं लेना, बस वो हाईली कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो पोटैटो को छोड़कर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, दाल भी ले सकते हैं, दाल का सूप भी, पानी ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। और अगर आप चपाती लेना चाहते हैं, मान लीजिए अब लंच टाइम की हम तरफ चलें, तो क्या करें, मिक्स आटे की चपाती लेंगे, उसमें चने वाला ज्यादा मिला लेंगे। चने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है और प्रोटीन ज्यादा होता है और आयरन ज्यादा होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। गेहूं का कम करेंगे थोड़ा सा, उसमें और रागी, बाजरा और बहुत से अनाज है वो आप मिक्स कर सकते हैं। और अनाज थोड़ा सा इंटेक कम करेंगे ड्यूरिंग कोविड की मैं बात कर रहा हूँ। पोस्ट कोविड आप इजीली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी सब ये इवनिंग टाइम पे आप ग्रीन टी जरूर लें, या जिसको हम काढ़ा बोल दें। काढ़े का एक सिंपल सा, क्योंकि काढ़े में इतनी दिक्कत आई है अभी, क्योंकि मैं उन पेशेंट से रेगुलर कांटेक्ट में था, काफी लोग फियर की वजह से, एंजाइटी की वजह से ज्यादा पीने लग गए, तो गला पक गया, टंग पे छाले डल गए, अल्सर हो गए, तो ये बड़ी दिक्कत आती है। तो उसमें आपने क्या करना है, अगर कोई काढ़ा पी रहा हो तो आप किसी और को भी बोल सकते हैं काली मिर्च ना डालें। अगर कोई काढ़ा पी रहा हो, काली मिर्च ना डालें, उससे बहुत दिक्कत आई। वो उबाल उबाल कर ज्यादा पी गए और फिर सारा गला पक गया, बोलने में भी दिक्कत आने लग गई, इतने ज्यादा अल्सर हो गए। और अगर बाई चांस किसी को अल्सर हो गया है, टंग पे है, गले में है, तो सबसे इजी वे है, आप मुलेठी, सिर्फ मुलेठी का काढ़ा बनाएंगे। और खाने का टेम्परेचर खाने की नेचर को बदल देता है, ये हमेशा याद रखिए। नेचुरोपैथी में फूड टेम्परेचर का लगभग 80% रोल रहता है। नेचुरोपैथी में फूड टेम्परेचर, आपको ये सब्जेक्ट अगर समझ में आ जाए, फूड टेम्परेचर, तो वही खाना अगर आप हाई टेम्परेचर पर खाएंगे वो अलग चेंजेस लेकर आता है बॉडी में। और उसी खाने को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर बोला जाता है, तो रूम टेम्परेचर सबसे अच्छा है। तो काढ़ा बहुत गरम गरम ना पिए। एक्चुअल शुरू में ये बात फैल गई कि गर्म पानी से कोविड वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस तरह से लोगों के ना दिमाग में बैठ गया, तो हाई टेम्परेचर पर चीजें खाने लग गए, हाई टेम्परेचर पर ग्रीन टी पीने लग गए, वो गरारे भी हाई टेम्परेचर पर करने लगे, तो उससे नुकसान हो गया थोड़ा सा। तो क्या करना है, जैसे मुलट्ठी के काढ़े की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर, लाइक रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा प्लस, ल्यूकवार्म आप कह सकते हैं। गरारा करना है या टंग पे अल्सर है तो कुरली करनी है और उसको पी जाना है, क्योंकि जो आपके माउथ में इंप्रेशन आता है वो आपके इंटेस्टाइन में भी होता है, वो आपके स्टमक में भी होता है। अगर टंग पे छाले डल रहे हैं, इट मींस आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी हीट है, वहां पर गर्मी है। तो कुरली करें या गरारे करें और उसको पी जाएं, ये जरूर ध्यान रखें। और इवनिंग टाइम पर फ्रूट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट कम लेना है ड्यूरिंग, तो फ्रूट्स लेने हैं तो खट्टे वाले फ्रूट्स लेंगे, उनमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। जो मीठे फ्रूट्स होते हैं लाइक चीकू है, मैंगो है, बनाना है, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो वो कम लेंगे। तो फ्रूट्स लेंगे कौन से, मौसमी है, ऑरेंज है, माल्टा है, और आजकल ये आ रहा है आपका खुरमानी है। तो जो थोड़ा सा खट्टे वाले, अनानास बहुत अच्छा है क्योंकि विटामिन सी भी रहता है, वो सपोर्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को। तो अभी आपने कोविड वर्ड बोल दिया तो वही सारा मटेरियल आ रहा है, तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। और फिर डिनर में क्या लें, डिनर में कोशिश करें आप दाल और वेजिटेबल, एक कटोरी दाल और एक कटोरी वेजिटेबल। तो उसमें भी क्या है, लैक ऑफ
कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। तो बहुत इजीली रिकवर किया है जिनसे भी कंसल्टेशन चल रही थी ड्यूरिंग कोविड। पोस्ट कोविड में आपने मैंगो का इंटेक फिर प्लस कर देना है। मैंगो आपको जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं कोविड के, लाइक ज्वाइंट पेन रहना, एक तो हमेशा याद रखिए ज्वाइंट्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग कलर थेरेपी होती है। ज्वाइंट की कोई भी प्रॉब्लम है तो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग येलो कलर आपके लिए खाना, येलो कलर पीना वो अच्छा रहता है। अब येलो में देखिए क्या क्या आता है, हल्दी, मेथी, फ्रूट्स में चले जाएं तो मैंगो एंड बनाना, बाहर का कलर, क्योंकि वही वो हमारे इस वातावरण से, सन से, एयर से, उस कलर की वजह से वो उसी तरह के क्वालिटीज को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, अगर आयरन डेफिशिएंसी आती है तो ग्रीन और रेड कलर की चीजें आपको खानी है। अगर ज्वाइंट से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया येलो कलर, लाइट येलो भी और येलो कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत इजीली अपना ध्यान रख सकते हैं। और डिनर तक हम पहुंच गए, फिर आपने सो जाना है, फिर खाना पीना बंद कर देना है। तो रेस्ट बहुत जरूरी है। और सबसे बेस्ट रेमेडी, अगर पोस्ट कोविड आपको कुछ सिम्टम बचते हैं, तो एक तो जो सिम्टम बच रहे हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में आए हैं वो मैं आपको आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक तो लंग्स वीकनेस आई है, ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो गई है, सांस बहुत जल्दी चढ़ने लग गया, मुनक्का कोई भी लंग आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड। दूसरा, अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइक कोलेस्ट्रॉल, तो एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, स्टीरॉइड, उस वजह से भी क्लोटिंग हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसमें ऐसी चीज है नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में, जिसमें आप डेली भी कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आंवला जूस 10 ml, 5 ml अर्जुन जूस आता है मार्केट में, इजी अवेलेबल है। अर्जुन एक पेड़ का नाम है, कोई भी ले सकता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। 20 डेज लेकर छोड़ दीजिए, बस हैबिट मत बनाइए, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। जो वीकनेस रह जाती है वो इमीडिएट रिकवर हो जाती है। तो ये था ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे पहले बोला, टूथब्रश इमीडिएट बहुत जरूरी है, जिसका हम ध्यान भी नहीं है। और पर्सनल हाइजीनिक लाइक टॉवल, फोम, तो इनको जितना ज्यादा हो सकता है, जैसे कपड़े को तो आप वाटर से धो सकते हैं, तो फोम है जैसे उसको आप उनसे वॉश कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका फायदा बहुत ज्यादा है। तो ये था कोविड के बारे में थोड़ा सा, जो मुझे अभी इमीडिएट, एक विशाल जी ने बहुत इमीडिएट पूछा था, जो कंप्यूटर, ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये हम सबकी है अब तो समस्या, क्योंकि 1% दुनिया ऑनलाइन हो गई है कोविड के बाद। सिर्फ आपकी समस्या नहीं, यूनिवर्सल हो गई है अब। तो उसमें अगर नेचुरलिंग या हम सेफ वे में जाएं, तो एक तो ये ध्यान रखना है, आपने जब भी कंप्यूटर यूज करना है तो कोशिश आइज के पैरेलल हाइट अरेंजमेंट कर सकें। और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग 22 इंच का डिफरेंस आपकी आंखों और स्क्रीन के बीच में होना चाहिए। लगभग 22 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, तो उसकी जो स्क्रीन की रेज हैं आपको बैड इफेक्ट नहीं डालती। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे घर बच्चे भी, हमारे लिए भी, आपके या लास्ट 11, क्योंकि आजकल हमारा रूटीन बिगड़ चुका है। उसके बाद टेलीफोन और कंप्यूटर स्क्रीन बिल्कुल यूज ना करें, ब्लू रेज निकलती हैं जो आपको
अवेयर और अलर्ट कर देते हैं, उससे पूरा नींद आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बता रहा हूं जो, लेकिन लास्ट 11 PM के बाद अगर कोई भी मोबाइल या स्क्रीन यूज करते हैं आप, तो ब्लू रेज का इतना बैड इफेक्ट आता है, ब्रेन में अवेयरनेस वाले हार्मोन स्टिमुलेट हो जाते हैं और फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, कंप्यूटर का कभी जिक्र नहीं होता, डॉक्टर कहता है इंसोम्निया है या एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो आपके एंटी डिप्रेशन पिल्स स्टार्ट हो जाती हैं और इस तरह से हम उलझ जाते हैं। हमें खुद नहीं पता होता प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर जाकर खत्म होगी। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे याद आ रही हैं। दूसरा, बच्चों के लिए स्पेशली आपको अरेंजमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा केसेस आए हैं पिछले 3 महीनों में बच्चों में सर्वाइकल का, और मुझे लगता है हम में से भी जो कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि स्टिल रह जाती है गर्दन, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको सरफेस ऐसा करना है कि पैरेलल आए आपका कंप्यूटर लैपटॉप, जो भी आप काम करते हैं उस पर रेगुलर सिटिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप काम कर रहे हैं आफ्टर 30 मिनट या कम आफ्टर 60 मिनट लास्ट है, 2 मिनट के लिए टहलने की आदत डालनी चाहिए, वरना पूरा ब्लॉक हो जाता है ब्लड हिप मसल से, लोअर बैक मसल से। और शैटिका पेन बहुत ज्यादा लोगों को है जिनका सिटिंग जॉब है। शैटिका पेन मुझे लगता है आप समझते होंगे, हिप से पेन स्टार्ट हो जाता है लोअर बैक से और पूरा लेग की तरफ जाने लग जाता है, तो बड़ी दिक्कत है फिर। तो इसलिए 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट टहलने की आदत डाल लीजिए। 2 मिनट भी टहल लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, फिर आप अपनी सिटिंग जॉब पर आ जाइए। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो हमारी बहुत हेल्प कर सकती हैं। बैक पेन के लिए शायद विशाल जी ने पूछा था या विकास जी ने पूछा था, मोहित जी ने पूछा था सर। आप मोहित जी, मैं मोहित जी, आपको मोहित सोई से। मोहित जी ने ओके मोहित जी, हाँ। सॉरी। तो बैक पेन के लिए एक ही एक्सरसाइज में आपको ऐसी बताना चाहूंगा, वो एक कहावत है, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक में ही सारी चीजें आपको, बैक की कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टमक के बल लेटकर हाथों और पैरों को ऊपर उठाना है, बस उल्टा लेटकर दोनों बाजुएं सीधी करके और बोथ लेग्स इस तरह से, मान लीजिए ये लेग्स हैं और ये आपकी बाजुएं हैं, ये आप लेटे हुए उल्टे इस तरह से उठाना है, बोथ साइड लेग्स एंड आर्म्स। इसका नाम है सलभासन। आप इंटरनेट पे कहीं भी टाइप करेंगे सलभासन, SALBHASAN, सलभासन। बस ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक एक्सरसाइज आपको क्या करना है, 10 टाइम्स डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मुझे लगता है 1 मिनट लगेगा आपका। 1 मिनट सुबह देना है खुद को, 1 मिनट शाम को देना है। आपकी बैक की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, बस इतना ध्यान रखना है, स्ट्रोक वाइज नहीं करना, झटके से नहीं करना, धीरे धीरे अप एंड धीरे धीरे डाउन, बस इतना ध्यान रखना है। सलभासन अगर ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप नंबर लेकर मुझे वहां पर व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं आपको छोटा सा सलभासन का वीडियो है हमारे पास, वो मैं आप सबको सेंड कर दूंगा। ये एम्प्टी स्टमक करना है डॉक्टर साहब? एम्प्टी स्टमक इज बेटर एंड इवनिंग बिफोर डिनर। ठीक है जी। और रही अब एक एंजाइटी वर्ड आया था, जो आपने आज जिक्र किया, मैं उनके बारे में जिक्र कर लेता हूं, फिर आपके क्वेश्चन लेंगे। अब एंजाइटी एक लिमिट तक तो बहुत नॉर्मल चीज है, एक लिमिट तक बहुत नॉर्मल चीज है। मैं एग्जांपल देकर आपको बता देता हूं नॉर्मल चीज कैसे है। एंजाइटी नेचर ने डिजाइन किया है एंजाइटी को। जैसे आप पहाड़ी पर जाते हैं तो आपको डर लगता है, अब ये नेचुरल क्यों है, नॉर्मल क्यों है? अगर हमारे अंदर एंजाइटी ना हो तो आप किसी भी चीज से डरेंगे नहीं, तो लाइफ रिस्क हो जाएगा। आप ड्राइव करते हैं, अगर एंजाइटी ना हो, आपको किसी तरह के डर ना हो, तो आप तो 120 पे चले जाएंगे, 150 पे चले जाएंगे। तो एंजाइटी के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है, उसकी रेमेडी पूछने की बजाय।
तो एक तो एंजाइटी को समझना है, तो एक लिमिट तक तो नेचुरल है। हाँ, अगर लेटे लेटे आपको हो रहा है कुछ, अगर बैठे बैठे कुछ हो रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, या एक पेशेंट से मेरी बात हुई थी तो मुझे याद है मैंने उनसे पूछा था कि आपको फील क्या होता है, तो उन्होंने, उनकी वर्डिंग क्या थी सुनिए ध्यान से, वो कह रहे थे कि सर अभी जैसे मैं आपके पास बैठा हूं मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये छत गिरेगी। एक्चुअल दीज टाइप ऑफ सिम्टम्स आर एंजाइटी डिजीज। अदरवाइज कोई ये सोचता है कि मुझे कुछ होमवर्क करना था उसकी एंजाइटी रहती है, ये एंजाइटी नहीं है, ये तो बहुत नेचुरल है, ये हमारे ब्रेन का नेचर है, वो हमसे काम करवाने का तरीका है नेचर का। अगर हमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा तो कोई काम नहीं करके, इट्स ए ह्यूमन नेचर, किसी को फिर मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, सब आराम परस्त है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है उसके बारे में हमें समझना ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है जो सोसाइटी में हमारे होता है, पहले तो 3-4 लोग बोलना शुरू कर देते हैं अरे आपको एंजाइटी है, आपको और कुछ नहीं है, आपको एंजाइटी है। फिर वो भी सोचना शुरू कर देता है हाँ मुझे ना एंजाइटी है, तो उसके दिमाग में बैठ जाती है बात कि मुझे एंजाइटी है, तो समझ लीजिए एक बीमारी की शुरुआत हो गई। तो वो खुद को, अपने आप को, इसको हिंदी में एक शब्द है हय दृष्टि से देखने लग जाता है, बेचारेपन से देखने लग जाता है खुद को, वहां से एंजाइटी एक्चुअल स्टार्ट होती है। तो यानी कहाँ से होती है, कह कह के स्टार्ट होती है, अरे मुझे एंजाइटी है, हाँ मुझे वो मेरे पड़ोसी ने भी बोला था मुझे ना थोड़ा सा एंजाइटी है। तो एंजाइटी को समझना है, इस तरह से खुद पर हावी नहीं होने देना। और अगर बाई चांस जैसे मैंने कुछ सिम्टम बताए आपको, अगर ऐसा है किसी को, मान लीजिए लेटे और ऐसे लगेगा कि पक्का गिरने वाला है, ये होते हैं सिम्टम, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप अपने रूटीन में एक तो थोड़ा सा 20 मिनट का वॉक या एक्सरसाइज ऐड करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड, 20 to 30 मिनट आपने गार्डनिंग करनी है, बागवानी करनी है। ये बहुत बड़ा एक साइंटिफिक और लॉजिकल ट्रीटमेंट है, लिविंग चीजों के साथ रहना है। आप समझ पा रहे हैं, गार्डनिंग से बेस्ट रेमेडी कोई भी नहीं है। अगर हम फूड उसमें आ जाते हैं तो आपने जैसे सोने से पहले बादाम तेल की एक एक बूंद नाक में डालनी है, ये फिक्स कर लीजिए। तो मुझे लगता है इसमें आपको बहुत हेल्प होगी। अगर इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है फिर आपको कंसल्टेशन की जरूरत है, फिर तो ये चीज क्लियर है। हाँ, हार्ट पल्पिटेशन जरूर बढ़ता है एंजाइटी में, लेकिन उसमें भी डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है। अभी जिनका मैसेज आया था उसमें डिफरेंशिएट करना क्या जरूरी है, क्योंकि गैस्ट्रिक और एसिडिक प्रॉब्लम की वजह से भी हार्ट की बीट बढ़ जाती है। उसमें हमें बहुत बारीकी से जाना पड़ता है। जैसे ही आप लेट जाते हैं उसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो एक गैस्ट्रिक ट्रबल है। मैं पहचान बता रहा हूँ, अगर आप बैठे हैं आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है, अगर आप लेट गए और इमीडिएट आपको हार्ट बीट फील होती है ज्यादा तेज, तो ये क्या है, एयर की प्रॉब्लम है आपको, आपका डाइजेशन पुअर है। उसमें ऐसे ही कोई मेडिसिन खाना स्टार्ट मत कर देना। तो डाइजेशन की तरफ जाना है, वॉक कीजिए और गैप मत कीजिए खाने का बहुत ज्यादा। अगर 4 घंटे से गैप ज्यादा हो जाता है तो एयर बनने का स्पेस मिल जाता है। तो उसमें क्या करना है, 3-3 घंटे में क्वांटिटी कम ले लीजिए, तो आपकी ये जो हार्ट रेट बढ़ने की समस्या है 1 या 2 दिन में ठीक हो सकती है। और ऐसा हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप सबसे शेयर कर रहा हूँ एक तरह से। और इसमें एक होम रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, बहुत जादू की तरह काम करती है। एक लौंग च्यू करना मुंह में रख के, सिर्फ एक लौंग, अगर घर में अवेलेबल हो तो छोटी इलायची, ये तो छोटी छोटी चीजें हमारे हम सबके घर में होती ही है लगभग। छोटी इलायची में क्या करना है, वो जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं वो रखने हैं, और एक लौंग च्यू करके उनका पानी पीते रहना। इमीडिएट आपका जो हार्ट रेट है वो कंट्रोल आ जाता है, इमीडिएट। अगर ये चीजें करके भी नहीं अगर हमें रिलीफ मिल रहा तो हमें ऑब्वियस है कि कंसल्टेशन लेना चाहिए डॉक्टर से।
तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस अभी जो आए थे। अब आपकी बारी। अश्विनी जी एक बात बताओ, इस बार ऐसा देखा गया कि जो कोविड का 19 का पेशेंट है, वो एक बार जब हॉस्पिटल में जाता है तो मतलब उसके पोजीशन बड़ी बढ़िया होती है, और जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो एकदम उसकी पोजीशन बड़ी खराब हो जाती है, और मतलब बहुत बार देखा गया कि उसके प्राण भी निकल जाते हैं। तो ऐसा मतलब ये एक्चुअल ऐसे है कि मतलब हमारा मन का वहम है? नहीं देखो, इस थ्योरी पे तो हम कभी चल ही नहीं सकते ना कि हॉस्पिटल में जाने से बट इस रिस्क बार है। जो जो सेकंड वेव है उसमें तो ये मतलब ये यूरोपीन में ऐसे ही मतलब रूटीन में ऐसे केसेस देखने को आ रहे हैं कि एक बंदा खुद कार चला के हॉस्पिटल गया और आफ्टरवर्ड्स उसकी डेथ हो गई। नहीं देखो, कोई को इंसिडेंट ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हुए। जैसे क्या था, अब की बार सेकेंड वेव में वायरस का नेचर इस तरह का रहा है कि आपको 5-6 दिन पॉजिटिव है लेकिन आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे, और 7th या 8th डे पे इमीडिएट आपके लंग्स काम करना बंद कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने जैसे जिक्र किया कि कोई गाड़ी चला कर गया, तो उस टाइम कोई सिम्टम नहीं है और इमीडिएट जो लंग्स में प्रॉब्लम आनी थी वो 8th डे आ गई। अब क्या है, बदनाम हॉस्पिटल हो जाता है। लेकिन हमें कोई डिसीजन नहीं लेना। आप समझ रहे हैं कि हॉस्पिटल बेटर है या घर बेटर है, हमें तो कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन रिस्क नहीं लेना। तो एक, मैं, अगर आप समझ पाए, बड़ा छोटे से गांव की कहावतें हैं, बहुत रॉ बात है। एक कहावत है कि अगर ये जो होते हैं ना गांव में ढिंडोरा पीटने वाले, आपने सुना है कभी? ऐसे स्पेशल लोग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मरासी, ठीक है ना? मरासी होते हैं ना, मरासी। तो वो एक कहावत है कि अगर उसके यहां से रोएगा भी, वो भी सुर में रोएगा। ये कहावत है, क्योंकि वो सिंगिंग बड़ी अच्छी करते हैं। अगर मरासी रोएगा तो वो भी सुर में रोएगा, ये कहावत है। तो ये कोई मेथड नहीं है कि हॉस्पिटल में रिस्क है अब आप घर पे रहो। इट्स नॉट अ साइंस। आपको जाना ही जाना है, आपको मेडिकल हेल्प चाहिए ही चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? और नीम हकीम खतरा है जान, आप अभी कोई पंगा और घर पे ही ले लें। तो यानी हॉस्पिटल में अगर डेथ भी होती है तो वो थोड़ा सा साइंटिफिक होती है, घर पे तो पता ही कुछ नहीं क्या कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? एक एलोपैथी डॉक्टर के संपर्क में रहना, उस साइंस को स्वीकार करना है, वो उनका एक स्टडी पैटर्न है, एक रिसर्च है। नो डाउट वायरस को अभी हम इतना जान नहीं पाए, तो इसलिए कोई भी कंप्लीट या डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना? लेकिन अब की बार तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करता हूं। सीरियसली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे किसी को लंग्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही, या लंग्स को हमने सेफ कर दिया किसी होम रेमेडी से, किसी मेडिसिन से, तो क्या कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि वायरस सब कुछ जान रहा है, समझ रहा है। तो क्या हो रहा था, हार्ट पे प्रेशर आ रहा था, यानी लंग्स उसके सेफ हो गए, तो किधर जा रहा है वायरस? हार्ट की तरफ जा रहा है। अगर आपने हार्ट को किसी भी तरह से सेफ किया एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पता लग रहा था कि किडनी में प्रॉब्लम आ गई। तो कहने का मतलब ये है, इस बात को सोचकर कि हॉस्पिटल तो रिस्की है, हम घर पे नहीं रुक सकते। हमें प्रॉपर जो भी हेल्प मिलती है, वो चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे नेचुरोपैथिक हो, किसी भी तरह से, हर तरह से हमें अंडर गाइडेंस रहना चाहिए। दिस इज द सेफेस्ट वे। राजीव शर्मा जी तुझे अपना क्वेश्चन पूछो। हेलो। हाँ जी सर। सर प्रणाम, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा गाइड करा। थैंक यू सर। पहले मुझे कोट याद आ रही थी थॉमस एडिसन साहब की, जो 100 साल पहले उन्होंने बोला था कि जो फ्यूचर में डॉक्टर्स होंगे वो दवाई नहीं देंगे, वो जीने का तरीका बताएंगे, बॉडी को समझने का तरीका बताएंगे, और डाइट के थ्रू उसको कंट्रोल करने का और बचने का तरीका बताएंगे। और बड़ा आनंद आ रहा है आपके सेशन से। सर जो आपने अभी कोविड और पोस्ट कोविड के हिसाब से बताया, जो नॉर्मल पर्सन हैं हम लोग, उनके लिए प्रिवेंटिव में फ्रूट का ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में ठीक है?
फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है सर। और वो बहुत मुनक्का अच्छा है। वगैरह वो भी रेगुलर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जैसे मुनक्का की इतनी जरूरत नहीं है नॉर्मल में, रूटीन में, क्योंकि एक रिकवरी कंटेंट उसमें ज्यादा रहता है। तो खट्टे फ्रूट्स जरूर लेने हैं, वो खट्टे मीठे फ्रूट्स जरूर लेने हैं हमें, कि ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। ठीक है जी, मॉर्निंग में सिर्फ फ्रूट का नाश्ता भी ठीक रह सकता है, जैसे स्प्राउट्स हैं प्लस फ्रूट्स हैं। देखिए अगर हम थोड़ा सा राजीव जी डेप्थ में जाते हैं तो क्या होता है फिर, आप उलझना नहीं, मैं एक्चुअल डिटेल बताना चाह रहा हूँ। क्या होता है, फ्रूट्स नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं और बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या होता है फिर सिलेक्टिव फ्रूट्स हो जाते हैं, क्योंकि हर एक, अब फ्रूट्स तो सभी अच्छे हैं लेकिन हर एक के लिए सारे फ्रूट्स अच्छे नहीं है। तो ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ता है अगर डेप्थ में जाएं। ठीक सर। एक सर थैंक यू, एक चाय के बारे में कहा जाता है कि हम रेगुलर चलो चाय पीते रहें, वही जो कंसेप्ट हमारे मन में था कि गर्म पानी है, चलो चाय भी थोड़ी नॉर्मल चाय भी इंटरमिटेंट ली जाए, क्योंकि हम लेने लगे हैं हम लोग थोड़ा सा कि ठीक है जब किसी से मीटिंग है तो चलो आके चाय जरूर पी लें। देखिए चाय का ऐसे है, मैं नेचुरोपैथी के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस भी रीड करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। जो एक्चुअल में चाय है वो 1 से 2 कप बेनिफिशियल है एक्चुअल चाय, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक्चुअल चाय जो आसाम में एक्चुअल मिलती है, ठीक है, और वो भी उनके लिए जिनमें स्टबन फैट होता है, क्योंकि चाय एसिडिक होता है, चाय में थोड़ा सा निकोटिन तो है ही है जो अवेयर करता है हमें और अलर्ट करता है। ठीक है सर, ठीक है जी। तो एक्चुअल चाय है वो 1 कप जरूर ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास पहुंचता है सर एक्चुअल तो पहुंचता ही नहीं है, एक्चुअल ठीक है ना। अगर आप इंतजामात कर लें अच्छी चाय का तो आप जरूर एंजॉय कीजिए। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर कंबोज जी सीनियर मेंबर है, कंबोज जी अपना सवाल पूछो जी। डॉक्टर साहब अभी आपने एक बताया था कि बॉडी की तासीर के हिसाब से अगर हम कोई चीज लेते हैं, जैसे अपना जुबान में या मुंह पे छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, तो वो बॉडी के अंदर इसका मतलब गर्मी हुई है। तो उसके लिए कोई आसान उपाय बताएं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी बॉडी का ये, अगर ये किशमिश या कोई ऐसी चीज खा ले थोड़ी सी भी ज्यादा, काजू बादाम, तो कई बार जुबान पे या मुंह में हल्के से छाले हो जाते हैं जी। और दूसरा पेल्पिटेशन का मेरा क्वेश्चन था जी, मैं नहीं पाया था वो। अच्छा, तो जिसको हम कहते हैं ना घबराहट होने लग जाती है, ये कोई गैस्ट्रिक या एसिडिक के कारण तो नहीं है ज्यादा, कि खाली पेट चाय लें या उस कारण, या चाय का इंटेक ज्यादा हो जाता है? हाँ जी, ठीक है सर। वैसे तो आपने दोनों क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो साथ के साथ आंसर किए गए थे। जैसे मैंने बोला था ये गैस और एसिडिटी की वजह से होता है, हार्ट पल्पिटेशन जो होता है, ठीक है। दूसरा मुलेठी का काढ़ा मैंने आपको बताया, जो टंग पे या गले में छाले डल जाते हैं, वो इतना इमीडिएट रिलीफ देता है, जादू की तरह काम करता है मुलेठी। और अगर और ये आप कितनी चाहते देर हैं उबालनी चाहिए जी? सर, जो भी काढ़ा, जहां भी वर्ड आता है ना, ये आप हमेशा याद रखिए, काढ़ा वर्ड जहां यूज किया जाता है उसका मतलब है पानी जितना डाला वो आधा रह जाए। आधा रह, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अश्विनी जी, मेरे 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा मेंबर्स को बताएं। हाँ एक जी, तो सर, please। जैसे मीन्स हमारी जो एलोपैथी है उसमें अगर किसी पर्सन को बीपी या शुगर जैसी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो उसकी एक मेडिसिन, एक गोली शुरू हो जाती है रेगुलर के लिए। क्या हाँ कोई जी, नेचुरोपैथी में ऐसी कोई रेमेडी है जो कि हम अराउंड 1 मंथ या 2 मंथ्स करके इन सब मेडिसिन को बंद कर सकते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग? एक चीज तो होगी सर ये चीज। एक सेकंड नंबर पे है सर कि जैसे आपने कोविड के लिए एक डाइट प्लान बताया है, लाइकवाइज अभी कोविड सिनेरियो में हम मेंबर्स ने काफी हमारा जो शेड्यूल है, सिटिंग शेड्यूल, और जो घर लॉकडाउन की सिचुएशन के कारण जो घर पे रहने के कारण ना कई मेंबर्स के मीन जो डाइट प्लान है वो सब बिगड़ चुके हैं।
तो उस चीज के लिए क्या मीन्स कोई ऐसा डाइट प्लान बताया जाए जिससे कि मीन्स हम लोग अपने बॉडी को फिट कर सके। ठीक है सर, आपके 2 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था बीपी और शुगर की जैसी जो रेगुलर मेडिसिन्स हैं, अगर हम उनको छोड़ना चाहें। सर जी सर। पॉसिबल तो है, पर उसमें थोड़ा सा हमें हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है कि माता पिता से तो नहीं आया। अगर माता पिता से नहीं आया फिर तो ट्रीटमेंट इजी हो जाता है और विदाउट एनी मेडिकेशन भी हो जाता है। कोई आयुर्वेदिक दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको रूटीन अच्छा करना है, थोड़ा सा मेंटेलिटी को इम्प्रूव करना है और योगा मेडिटेशन, इन्हीं से हो जाता है रिमूव प्रॉब्लम। वो मेडिसिन बंद हो जाती है, जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है। कई चीजों पर डिपेंड करती हैं बातें, लाइक एज पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने हिस्ट्री बताया, और आपका स्ट्रेस लेवल डे रूटीन में कितना है ना। अब किसी को मैं एक थोड़ा सा हंसी की बात बता देता हूँ। मान लीजिए अब किसी को देनदारी इतनी है तो उसकी दवाई चढ़वाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कितना उसको ट्रीटमेंट बताएंगे। आप समझ पा रहे हैं? ये मैं प्रैक्टिकल चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो हमें प्रॉब्लम आती है। हम कहते हैं भाई इसका हमारे अकॉर्डिंग रूटीन भी अच्छा चल रहा है, फिर इसको हेल्प क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चीज चल रही है जो वो मेडिसिन्स का या रूटीन का वो असर ही नहीं होने दे रही। मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो बहुत सी चीजें मैटर करती है। हमें टोटल एक हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन पॉसिबिलिटी है, ये 100% श्योर है कि पॉसिबिलिटी है। आप कोई भी दवाई छोड़ सकते हैं, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी बबीता शर्मा जी साहब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। शुगर में जो प्रॉब्लम शुरू होती है, ज्यादातर शुगर ज्यादा खाने से होती है, जो स्ट्रेस लेवल मेजर रोल प्ले करता है। सर देखिए शुगर, बिल्कुल शुगर छोड़नी पड़ती है। हाँ, एक्चुअल में आप हैरान हो जाएंगे, शुगर का मीठा खाने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन शुगर होने के बाद मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीठा खाने से शुगर होता है, लेकिन शुगर होने के बाद अगर मीठा खा लिया तो प्रॉब्लम होती है। बबीता समझ शर्मा पा जी रहे हैं? मेजर रोल शुगर का रहता है या स्ट्रेस लेवल का रहता है। जैसे इनिशियल स्टेज हो शुगर की, तो इनिशियल स्टेज पे मेडिसिन शुरू की नहीं है, तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि इसको हम उस लेवल तक ना आने पाए कि हमें मेडिसिन के लिए एक्चुअल होना सर पड़े? उसमें क्या है, एक तो अपना डाइट पैटर्न को अच्छा करें, वॉक बहुत जरूरी है। वॉक तो ये समझिए 40 मिनट उनके लिए मस्ट हो जाती है, और ऐसा नहीं कि संडे आज छुट्टी कर दें, ऐसा नहीं कर सकते वो लोग जो बॉर्डर लेवल पे हैं। तो और थोड़ा सा जो हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं तो इमीडिएट वो बच सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन से। बबीता शर्मा जी आप क्वेश्चन पूछो अपना, अनम्यूट कर लो। अनम्यूट हो गया। नमस्ते अश्वनी जी, बहुत अच्छा लगा, आप हमें अच्छी सी जानकारी दे रहे हो और हमारी सेहत का अच्छा सा ध्यान रख रहे हो। हमें बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। एफबी के ऊपर भी हम देखते हैं और योगा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी थोड़े 1 मंथ पहले मेरे को कोरोना के सिम्टम थोड़े से आए थे, बट उसके बाद जैसे डॉक्टर ने बोला कि इसमें बाद में ओवर ईटिंग करते हैं, उस टाइम तो भूख एकदम मर जाती है या खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो ओवर ईटिंग का मतलब वेट बढ़ना, तो वैसा हुआ भी है, वेट बढ़ना हुआ भी है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम योगा भी करते हैं, उसमें अपनी बॉडी को अगर हम सही तरीके से रखते भी है, लेकिन उसके बाद भी वेट बढ़ रहा है ओवर ईटिंग के बाद, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कि बॉडी भी सही रहे, ओवर वेट भी ना हो और ओवर ईटिंग भी ना हो, तो क्या करें? अच्छा। क्योंकि इस टाइम पे ना वीकनेस बहुत हो गई है। ठीक है बबीता जी, आप ये एफबी से आए या सीए फैमिली से हैं? सर दोनों तरफ से समझिए। अच्छा ओके, आप लुधियाना से हैं इट मींस। मैं दिल्ली से हूँ सर। अच्छा। मैं लुधियाना में आई हुई हूँ अभी छुट्टियां काटने। दिल्ली का माहौल इतना गंदा हो रखा है, तो मैं यहाँ पर मैंने कहा चलो कुछ अच्छा मिलेगा।
हाँ देखो फिर अच्छा मिल भी गया आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सेशन यहाँ मिल वही गया। तो प्रॉब्लम हो गई सर के मम्मी के घर आए हैं तो ओवर ईटिंग वहां तो होती थी, यहाँ तो कुछ और हो जाएगी। हाँ नहीं नहीं, देखिए ओवर ईटिंग का तो सब आपके हाथ में है, ओवर ईटिंग का कसूर मत निकालिए। ये तो आपने देखना है, ठीक है। दूसरा ये है, ओवर ईटिंग क्यों होती है, कुछ नेचुरल फैक्ट भी होते हैं, ये हम सबके काम की बात है। कोई भी वायरल प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, ये सब ध्यान रखिए, कोई भी वायरल प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी उसके बाद रिस्पॉन्ड करती है रिकवरी के लिए, इसलिए वो ज्यादा डाइट की डिमांड करना शुरू कर देती है, भूख बढ़ जाती है अचानक। आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आफ्टर कोविड क्या है, दो बड़े रीजन रहे हैं भूख बढ़ने के। एक तो स्टीरॉइड जिन्होंने यूज किया, और एक नेचुरल प्रोसेस भी है हमारी बॉडी के रिकवर करने का। अब प्रॉब्लम ये आती है ना, समस्या ये है हमारी कि हमें ये होता है कि भूख लगी है, अब हमारी प्रॉब्लम ये है हमें ये नहीं पता खाना क्या है। भूख जब ज्यादा बढ़ जाती है हम क्या करते हैं, बस जो आगे आ रहा है जी चलो। जैसे हमारी एक क्लास लगती थी योगा की, तो मैंने बताया कि सुबह सुबह डाइट में ना मीठा जरूर खाना चाहिए। अब इतना ही सुनना था, एक व्यक्ति ने रसगुल्ले खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक सर। अब समस्या ये है ना हमारी कि मीठे का मतलब हमारे ब्रेन में फीड है, मीठे का मतलब क्या है? तो और मैंने उनको बोला, फिर उनके घर से मुझे शिकायत मिली कि सर आपने क्या बता दिया, इन्होंने तो रसगुल्ले खाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने कहा जी मैंने तो मीठे का जिक्र किया था। कहते फिर उन्होंने नहीं समझ आया ना, उन्होंने, अब मीठे का मतलब मेरा ये था कि कोई फ्रूट्स या मीठा दलिया या गुड़, कोई अच्छी चीज, मीठे का मतलब ये था। तो मैंने उनको बोला कि सर आपने ये तो गलत मिठाइयां खाना शुरू कर दिया, इससे तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब क्या है हमारी प्रॉब्लम ये है, हम ना तो फूड को समझ पाते हैं, और फिर अगर समझते भी हैं तो इस तरह से समझते हैं जैसा उनका आंसर था। मैं उनका आंसर दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा लो जी, पहले तो आपने कहा मीठा खाना चाहिए, अब परमात्मा ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, अब आप मना कर रहे हो, तो फिर इंसान खाए क्या? अब मैंने उनको जो आंसर दिया वो भी आप सुन लीजिए। मैंने कहा आप हलवाई को परमात्मा का नाम दे रहे हैं। परमात्मा ने जो मीठा बनाया आप खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से परमात्मा ने जो बनाया आप ओवर ईटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। अपना अशोक लेकिन भाटिया जी, सर इसमें जो वेट बढ़ रहा है उसका क्या करें, वो तो बहुत ज्यादा सर वही है ना। अगर परमात्मा का बनाया हुआ खाएंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा बबीता जी। ठीक से, मम्मी का बना हुआ नहीं खाएं। वही तो प्रॉब्लम है ना। अपना अशोक भाटिया जी साडे सीनियर मोस्ट फाउंडर मैंबर है जी, ये हुन बोलेंगे। अशोक भाटिया जी अनम्यूट कर लो सर। भाटिया जी अनम्यूट कर लो दोनों। उन्होंने आवाज वाला भी ऑफ ना किया हो, कभी सुनाई ना। नहीं हो गया ऑन, हो गया हाँ सर। जी। भाटिया जी आवाज नहीं आ रही। भाटिया जी चलिए कोई नेक्स्ट ले लेते हैं जब तक भाटिया जी रेडी होते हैं। रेडमी नोट 9 नाम लिखा हुआ है, ये अपना अश्विनी जी, हेलो मेरा एक जानकारी थी, जैसे हार्ट बर्निंग के ऊपर आपने बताया। हेलो अश्विनी जी, हाँ जी हाँ जी, बोलो विशाल जी, वो कोई बीच में और हार्ट आवाज बर्निंग गया। के जैसे आपने 4 आवर से अगर ज्यादा गैप हो जाए ना खाने में, हाँ तो जी हाँ साथ ही जलन स्टार्ट हो जाती है, मतलब जी, वो होगा, वो आधा वो होएगा घंटा। सर। वो हमारा बॉडी का सिस्टम है सर विशाल जी, तो उसमें हमें क्यों करना है ऐसा? या तो क्या होता है, एक पीएच वैल्यू रहती है सर। हाँ अगर जी, बॉडी एसिडिक है तो 4 घंटे के गैप में रिस्पॉन्ड करेगी। या तो हम अपनी बॉडी को रिफ्रेश करें जैसे कंप्यूटर होता है, अब हम अपना ध्यान रख नहीं पाते हैं। समस्या ये है ना। अब क्या होता है, देखिए छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। फॉर एग्जांपल 5-10 लाख की गाड़ी है, हम कभी भी गलती से उसमें पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल नहीं डलवा सकते।
लेकिन हमारी ये गाड़ी अनमोल है, इसमें पता नहीं अपने को डीजल जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, चल रहा है, बस ठीक है, काम चल रहा है। अपने को होता है एक फाइल का काम निपट गया, बस शांति मिल गई। बट हमें खुद का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा सर। तो उसके लिए प्रॉपर हेल्थ गाइडेंस की जरूरत होती है विशाल जी। मैं बता देता हूँ इसमें आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। इसमें आपको क्या है, फाइबर इनटेक करना पड़ता है। ओके। फाइबर इनटेक आपको, जैसे आपका फॉर एग्जांपल 2 kg फूड इन अ डे है, मिनिमम 800 ग्राम आपका फाइबर इनटेक होना चाहिए। बस सिंपल वे है, एक हफ्ते में आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओके। Redmi Note 9 Pro क्वेश्चन रेज करो सर। सिर्फ फाइबर इनटेक से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? हाँ जी सर, आप देखो तो करके, वरना हम बैठे हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर। हाँ जी, हाँ जी बोलो जी। जैन नोट साहब, 9 जी अपने आप अनम्यूट कर लो सर। जैन साहब अनम्यूट करो Hello. अपने आप नो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। एंड वेरी गुड इवनिंग। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने किया है और विशाल सर ने भी बड़ा अच्छा ही ऑर्गेनाइज किया है। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था, कई बार हम कुछ चीजें खाते हैं तो उसके बाद जैसे एलर्जी सी हो जाती है या तरफड़ जिसको कह देते हैं पंजाबी में, तरफड़ पै जाते हैं। हाँ जी, हो हाँ जी। जाता है थोड़ी देर बस फिर ठीक हो जाता है। बट अगर आप शुगर चेक कर दें, शुगर वगैरह सब कुछ ठीक होता है, एवरीथिंग इज फाइन। बट सम फूड आई डोंट गेट इट, कौन से फूड तो क्यों ये हो जाता है? हाँ कि कई बार कई जगह होता है। हाँ, मैं बता देता हूँ सर। आपका शुभ नाम? अनम्यूट हो गए। कोई बात नहीं। सर मेरा नाम प्रणव जैन है। हाँ, मेरा नाम प्रणव जैन है। अच्छा प्रणव जी, जी। देखिए सर, कभी भी हम कोई पर्टिकुलर फूड को जज नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हमारा ब्लड एसिडिक हो गया है, इसको बोलते हैं छपाकी। आयुर्वेद में बोलते हैं पित्त उछलना। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ 3 चीजें रहती है ना, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रेट रहता है। तो ये जो पित्त है वो अग्रेसिव हो जाती है हमारे ब्लड में, तो वो स्किन की तरफ दौड़ती है, उसको हम बोलते हैं धप्पड़ डल गए। ठीक है, तो हिंदी में इसको आयुर्वेद में नाम दिया है छपाकी हो जाती है। तो इसमें कोई भी एंटी एलर्जिक ले लें आप, आयुर्वेदिक ले लें, एलोपैथिक ले लें, इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। होम्योपैथी भी आप रख सकते हैं। तो एक तो ये तो ट्रीटमेंट है इमीडिएट रिलीफ का। अब ये आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या करना है, हमारे ब्लड की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है इसमें। तो उसके लिए अगर आप डेली ऐसा वर्कआउट करते हैं कि आपको स्वेटिंग हो, लेकिन रूटीन में, तो आपके ब्लड को वो आदत डल जाती है, तो आपको किसी ऐसे फूड से दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं 2-3 फूड आपको बताता हूँ जो बहुत ज्यादा एलर्जिक होते हैं। एक तो इसमें सोया प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एलर्जी होता है, जिनको ऐसी दिक्कत आती है ना, जो इस तरह के सेंसिटिव स्किन में मामले में होते हैं। तो सोया प्रोडक्ट, वो टोफू हो या सोया मिल्क हो या ये सोयाबीन की बड़ी आती हैं, आप उनमें कोई भी प्रोडक्ट लेंगे। सेकंड, कोई भी प्रिजर्वेटिव, लाइक आप पैकेट फूड कोई भी खाएंगे तो उससे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और अल्कोहल जो लोग ज्यादा इंटेक कर देते हैं तो उनको भी, मैं सॉरी मैं आपको नहीं जानता, मैं 3 फूड का बता रहा हूँ। इसमें ये अल्कोहल कंटेंट और जो सोया प्रोडक्ट है और पैकेट फूड में जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है उन चीजों को। विकास गिया जी क्वेश्चन पूछो अपना। विकास जी। थैंक यू सर। विकास गिया जी। इसमें हेलो, इसमें एंटी एलर्जी क्या ले सकते हैं? आई जस्ट एंटी एलर्जी Anti-allergy बताइए कौन सी कौन से medicine वाली? मैं आपको आयुर्वेदिक की बता होम्योपैथिक की पाऊंगा। बता दीजिए या आयुर्वेदिक बता दीजिए। हाँ हाँ, आयुर्वेदिक में बता देता हाँ हूँ। आयुर्वेदिक बता दीजिए। हिमालय की टेबलेट आती है सर, ब्रीसोल। ब्रीसोल, BRESOL, हिमालय की टेबलेट आती है। आपने क्या जवाब? और एक ठीक है। हर एक कंपनी का आता है, एक पाउडर भी आता है, मीठा पाउडर आता है, हल्दी से बनता है वो, हरिद्रा खंड। आर्टिक, इसको एलोपैथी में आर्टिक एरिया बोलते हैं, तो हरिद्रा खंड। जी। तो
अभी कोई समीर राजकीय जी जी कोई डिटेल भी मांग रहा था, शायद फोन नंबर आप दे देना उनको, या वो अगर स्लाइड है आपके पास वो सेंड कर देना। हाँ जी सर। राजकीय जी क्वेश्चन पूछो। हाँ जी डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। थैंक यू सर, बताइए। डॉक्टर साहब, आफ्टर कोविड 1 महीने पहले हुआ था मेरे को, उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा चेस्ट में हैवीनेस रहता है बोथ साइड्स। हाँ, वो तो बहुत इजी है सर। एक तो परमानेंट डेली आपने एक आदत डालनी है कि 5 बैलून या एक ही बैलून को 5 बार फुलाना है। ठीक है, सुबह सुबह ये फिक्स कर लीजिए। अगर घर में शंख है तो फिर बैलून की जरूरत नहीं है, शंख ध्वनि कीजिए। ठीक है सर। और एक क्या करना है, ब्रेथ इनटेक करके जैसे लंबा ओम का उच्चारण करना है। आप जितना धीरे धीरे होल्ड करके बोल सकते हैं, जैसे सॉरी, ये क्या है, फिर इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। तो टाइम नोट करना है। टाइम नोट करेंगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल 20 सेकेंड, फिर कोशिश करना है 22 सेकेंड हो, फिर कोशिश करना है 25 सेकेंड हो। बस आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी डिटेल डॉक्टर साहब आपकी शेयर कर दी। ठीक है सर, वो कोई पूछ रहा था ना, तो हाँ अभी जी, हाँ कुछ मेंबर्स पूछ रहे थे। तो डॉक्टर साहब ये पर्सनल नंबर है आपके, ये दोनों मतलब पर्सनल तो अब रहा ही कुछ नहीं ऑनलाइन आने के बाद ना। हाँ जी, लेकिन यहाँ से अपॉइंटमेंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हो जाती है। ओके हाँ, डॉक्टर। मोहित सोही जी अपना क्वेश्चन पूछो जी। एक कंबोज साहब पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आयु का मतलब क्या है? और आयु का, हाँ जी, और आयु का मतलब है आपकी आयु को और बढ़ा देना। और आयु ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी सर। मोहित जी हाँ सर, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मॉर्निंग में उठ के ड्राई फ्रूट्स वगैरह का उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि वेदर इट इज बेनिफिशियल टू टेक ड्राई फ्रूट्स एंड क्वांटिटी एंड हाउ मच? सर everything is beneficial, but depend on conditions, depend on physical nature. सर जैसे बादाम वगैरह हैं या अखरोट हैं, इसका काफी सुनने में आता है कि सुबह एक पीस अखरोट का और 5-7 बादाम ऐसे, लाइक आप उसको मतलब सजेस्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल सजेस्ट करते हैं सर। हमारे डाइट चार्ट में कंपलसरी होती है ये चीजें। नट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है और गुड फैट जो है वो हमें नट से ही मिलता है। ठीक है, और ओमेगा 3 स्पेशली जरूरी तो बहुत है, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड है। आपको एम्प्टी स्टमक लेना है या आफ्टर मील लेना है या आफ्टर फ्रूट लेना है। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ तो आपका थोड़ा सा एसिडिक नेचर है, देखने से भी आयुर्वेद में ना पहचान से पता लगता है। तो एक तो आप हमेशा याद रखिए, मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये चीज, विदाउट सोक किए नहीं खाना आपने, बिल्कुल भी। सोक करके ही आप खाएं नट्स जब भी खाएं, एक तो ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है सर। और अखरोट थोड़ा सा कम लेंगे आप। हाफ वॉलनट डेली आपकी लिमिट है, जो मैं देखने से आपको फील कर पा रहा हूँ, जज कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर वेरी हाई जजमेंटल। हाँ नहीं सर, थैंक यू, काम है ना सर। हाँ, एक इसमें और सर बताइए, जैसे तुलसी का रस होता है, हाँ जी, वो ले सकते हैं मॉर्निंग में? मैं तो ले रहा हूँ वैसे, जो 5 तुलसी का रस आता है ना, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच पानी में उतना इक्वली मिक्स करके। ले सकते हैं सर, ले सकते हैं। राइट, आप ले सकते हैं, बट उसमें वाटर इनटेक थोड़ा सा ज्यादा करना है आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ ये प्रोडक्ट किस तरह से बन रहे हैं। तो उसमें भी प्रिजर्व रखने के लिए एक अच्छा केमिकल डाला जाता है, तो इसलिए पानी जितना आप क्वांटिटी ले लेंगे तो वो उतना लाइट हो जाएगा बॉडी पर, ये हेल्प हो जाएगी। तो ये लाइव सर खुद ही लीव्स तोड़ के बॉईल करके बना सकते हैं? सर उससे बेस्ट कुछ नहीं है धरती पर।
देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप सभी के लिए जो चीज फ्रेश अपने हाथ से, और ये स्पेशली आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, बड़ा अच्छा विशाल जी ने पूछा कि हर चीज जो भी फूड है उसकी सबसे बेस्ट फॉर्म होती है उसकी फ्रेश कंडीशन। आप समझ रहे हैं? राइट। एक आपने आंवले का मुरब्बा खाया और एक आपने आंवला खाया, तो आंवले से बेस्ट मुरब्बा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मेडिसिन्स में बहुत सी चीजें आती हैं, तो जैसे कोई किसी चीज का ऑयल आता है, कोई असव आता है, रिस्ट आता है, टेबलेट आती है, पाउडर आता है, तो सबसे अच्छी फॉर्म मेडिसिन में भी फ्रेश मानी जाती है। लाइक तुलसी का कुछ खाना है आपने, तो अगर तुलसी के पत्ते आप डायरेक्ट ले लेते हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है। गिलोय का कुछ भी, मतलब जूस, लाइक गिलोय आप खा सकते हैं, इट्स ओके, अदरवाइज उसका बेस्ट फॉर्म फिर जूस, फिर नेक्स्ट फॉर्म काढ़ा, फिर नेक्स्ट फॉर्म टेबलेट, फिर नेक्स्ट फॉर्म, ऐसे फॉर्म चेंज होते होते उनकी क्वालिटीज भी कम होती है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। अश्विनी जी चलिए। आजकल ना तो बच्चियां दी जैसे ये जूस आईज से बड़ा इफेक्ट पहले खराब होती है। सर 5:20 मेरा समीर जी प्रोग्राम है एक, तो अच्छा अपन जी। हाँ कोशिश करें अब। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। आइस के बारे में पूछ रहे थे सुमीत जी भी, आइस हाँ के। पूछिए पूछिए पूछिए। सर आईज क्या बताओ, पर आईज कैसे बच्चों की स्वस्थ रखें? आइस बच्चों की स्वस्थ रखें, ये पर्सनल पूछ रहे हो लगता है आप। पर्सनल भी है। तो सर उसमें देखो, एक तो बच्चों की डाइट का जरूर ध्यान रखें, और जैसे मैंने कंप्यूटर यूज का बताया, स्क्रीन यूज का बताया, वो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, है ना। दूसरा, अगर एक मैं घरेलू नुस्खा आपको बता देता हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बेनिफिट बहुत अच्छा है। 100 ग्राम बादाम गिरी और 50 ग्राम सौंफ, कच्ची सौंफ हरे वाली, और 20 ग्राम काली मिर्च, इस रेशो में लेकर सर ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और इसमें आपने 150 ग्राम शक्कर डालना है, जगरी पाउडर, और ये एक एक चम्मच, अगर 10 साल का बच्चा है तो एक एक चम्मच, अगर उससे छोटा है तो आधा आधा चम्मच, सुबह शाम गर्म पानी से, गर्म दूध से, जिस ये गर्मियों में भी ले सकते हैं ऐसी? गर्मी सर्दी दोनों ले सकते हैं डॉक्टर साहब? हेलो डॉक्टर साहब। गुड हो गए अश्विनी जी, अनम्यूट। हेलो हेलो। हाँ जी बोलो सर। हाँ जी। हाँ जी अश्विनी। मैं ये कह रहा था बच्चे ले सकते हैं, बिकॉज बिफोर 20 हमारा ब्लड इतना एसिडिक नहीं होता है, तो वो ले सकते हैं। ओके ठीक है ठीक सर। है। और क्या क्वेश्चन था? अश्विनी जी अगर आप बता सको, थोड़ा सा हटके है, बच्चों में ना आजकल वीट एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसके कारण वो कुछ भी नहीं खा पाते, वीट, बेसन और मैदा। तो कुछ इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ तो सर देखिए, एक्चुअल ये वीट एलर्जी नहीं होती है, एक्चुअल क्या है, वीकनेस ऑफ इम्यूनिटी होती है। आप समझ रहे हैं? तो हमें इम्यूनिटी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे ही इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी मजबूत होगी, तो एक तो बच्चों को ना फिजिकल गेम की आदत डालिए, कंप्यूटर गेम की बजाय, बहुत जरूरी है। और दूसरा, अगर आप होम रेमेडीज में जाएं तो गिलोय रेगुलर उनका चलना चाहिए। ठीक है सर। जूस ये दा क्वेश्चन है, प्लीज गाइड अस अबाउट बेस्ट बाइफरकेशन ऑफ 24 आवर्स इनटू वॉकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, रनिंग एटसेट्रा। सर बाइफरकेशन ऑफ 24 आवर्स। नहीं, मैंने आपको टाइम बता दिया, आपने तो स्पीड ही बढ़ा दी, क्वेश्चन ही नहीं ऊपर से निकल गया। बेस्ट बाइफरकेशन ऑफ 24 आवर्स इनटू वॉकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, रनिंग एटसेट्रा। हमने 24 घंटे को कैसे बाइफरकेट करना है, अपने दिन के 24 घंटे को कैसे बाइफरकेट करना है? हाँ सर देखिए,
कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं होती, क्योंकि अगर आप कहीं बुक में पढ़ लेते हैं कि इतने घंटे सोना चाहिए या इतने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो एक कॉमन चीज होती है। एक्चुअल रियल और ट्रू नॉलेज ये कहती है कि आपको खुद के अकॉर्डिंग चलना है, आपको इतना नॉलेजेबल होना है कि आप अपने अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए। कब आपको सोना चाहिए आपको अपने आप का पता हो, तो वो नॉलेज गेन कीजिए एक्चुअल में। अगर मैं कुछ बोल देता हूँ पर्टिकुलर कि 8 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी है, तो जिस दिन आपके 7 घंटे हो गए तो एक वजह बन जाएगा स्ट्रेस का। तो इस नॉलेज में कुछ फिर भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक्चुअल चीज जो है वो मुझे जरूर रहता है कि मैं सबसे शेयर करूं एक्चुअल रियल नॉलेज। तो उसमें तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको उस नॉलेज तक पहुंचना है कि एट प्रेजेंट कंडीशन ऑन द स्पॉट आप डिसीजन ले सके कि हाँ आज मैंने इतना सोया हूं, अब मुझे सोना चाहिए, आज मैंने इतना खाया, अब मुझे खाना। फॉर एग्जाम्पल पानी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब नॉलेज तो यही कहती है कि 2.5 लीटर पानी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, लेकिन वो कोई फिक्स नहीं हो सकता। कोई लाइक मजदूर है वो 4 लीटर पानी भी पीता है, और कोई नॉर्मल है जैसे मैंने एक बार व्रत कर लिए थे तो एक महीना फ्रूट्स और वेजिटेबल पे 1 गिलास पानी नहीं पिया एक दिन में भी, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल में इतना पानी इनटेक हो जाता था। तो उस नॉलेज को कभी फिक्स मत होने दीजिए। फिर भी 8 घंटे की नींद और 1 घंटे की एक्सरसाइज ये तो बहुत जरूरी है, इतना फिक्स रखिए। बाकी आपका अपना रूटीन आपको ज्यादा पता है। हाँ जी समीर जी। जी सर, एक अपना ठीक है, आप अपना भजन सुना दो सर, बढ़िया। अच्छा काम लाया पहला अनम्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर सर आवाज आ रही है सर। आ रही है जी, बहुत अच्छी। अच्छा सर अब मैं भजन सुना रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। मुझे लगता है ये एक्चुअल में भजन मैंने मेरा फेवरेट भजन है, मैंने 20 साल पहले सुना था। और वो जब भी कोई ऐसे बोलता है ना तो मुझे इमीडिएट वही भजन याद आता है कि जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, मन की मशीनरी ने अब आके चलना सीखा, मन की मशीनरी ने अब आके चलना सीखा, जब तन की मशीनरी के पुर्जों पे जंग आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, फुर्सत के वक्त में ना योग का वक्त मांगा, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता
वापिस वो घर को आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन निकल चुका तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। तो यही भजन मुझे ध्यान आया। विशाल जी, अश्विनी जी ने ना जाना है, उसका उनका 5:20 पे दूसरा सेशन है, तो इसको वाइंड अप करो। एक बार एक अवनी जी का क्वेश्चन था, क्विकली पूछ लीजिए अवनी जी, या आईफोन XR, नहीं तो हम बंद कर रहे हैं इसको सेशन को, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जाना है। अगर आप हैं, क्योंकि इन्होंने मैसेज किया है, इनके हार्ट से रिलेटेड कोई इशू था। हाँ जी पूछ लीजिए, कोई बात। अवनी प्लीज अनम्यूट आईफोन XR। हेलो। हाँ जी प्लीज। हाँ जी, थैंक यू सर फॉर अमेजिंग सेशन। आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क कि पोस्ट कोविड काफी लोगों को दिक्कत आ रही है कि सेंस ऑफ स्मेल वापस नहीं आ रही उनकी, या उनके मुंह में बारी बारी मेटेलिक टेस्ट रह रहा है, टेस्ट सेंसेशंस वापस नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मेटेलिक टेस्ट है तो इमीडिएट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बंद करने हैं। ओके। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो टंग से रिलेटेड और टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम एक ही दिन में ठीक होती है, ये अभी तक का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल 0 कर दीजिए फॉर 10 डेज। ओके। और जो स्मेल की बात है, स्मेल के लिए आपको अलग अलग ट्राई करना पड़ेगा। लाइक अच्छी चीजें, लाइक आप पार्क में जाएं तो किसी फ्लावर को स्मेल करने की कोशिश करें, फिर किसी दूसरे फ्लावर को, अलग अलग मतलब फ्रेग्रेंस वाले। तो इस तरह से आपको अभी वापस नोज को, उन सेंसेस को प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। दिस इज द ओनली वन मेथड। या सेकंड एक तरीका है वो जल नीति का, अभी हमने सेशन पीछे लगाया था, अभी जब भी लगाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फेसबुक से आप, इंस्टा से कहीं भी जुड़ते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे, इन्हीं नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जल नीति का हम सेशन लगाने वाले हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये ममता गोली जी ने लिखा कि आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। ओके, थैंक यू सो मच। एक गिफ्ट तो आप सब ले गए आज, और आपने मुझे दे दिया गिफ्ट। सर रिटर्निंग गिफ्ट आ रहा है आपके लिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर। और विशाल जी अनम्यूट करो, विशाल जी अनम्यूट करो। मेरा ही म्यूट हुआ है। मैं कही बहुत, अश्विनी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा आपकी बात सही है, गिफ्ट तो हमें मिल गया कि आज हमें सुनने का मौका मिला आपको। नहीं, मुझे भी गिफ्ट कुछ मिला। क्वेरीज अभी भी पेंडिंग है, बट वी नो योर बिजीनेस एंड यू हैव टू अटेंड अनदर मीटिंग। तो थैंक यू अश्विनी जी फॉर ऑन बिहाफ ऑफ होल ITCA। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत क्वेरीज हैं, हर एक की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आप पूरा दिन भी बोले तो भी शायद हमारी क्वेरीज खत्म नहीं होने वाली। तो तहे दिल से अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई नाउ रिक्वेस्ट CA विकास गुप्ता जी टू प्लीज प्रपोज फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू विशाल जी। डॉक्टर अश्विनी गौतम जी, इट्सा अवार्ड की तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने हमें सेहत और स्वस्थ जीवन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम जनरली प्रोफेशनल बॉडी होने के कारण प्रोफेशनल रिलेटेड सेमिनार तो बहुत करते हैं, बट आज हमने हेल्थ के रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही अच्छा लगा। कई मेंबर आपको पहले से जानते थे, आपके फॉलोअर हैं, बट आज जो आपने हमें जानकारी दी है, बहुत सारे मेंबर आपको फॉलो करेंगे। आपका नंबर भी शेयर कर दिया। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि जिनकी क्वेरीज रहेगी आप जरूर उनको सेटिस्फाइड करें, उनको गाइड करें। और मैं इसी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे इट्सा परिवार के मेंबर्स ने भी बहुत ही अच्छी तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू बहुत सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर।
अश्विनी जी आपने हर बार की तरह इस बार भी मंत्रमुग्ध कर दिया हमें और हमें बहुत बहुत बढ़िया लगा। वेरी वेरी थैंक्स सर। थैंक्स अ लॉट सर। आपका सेशन थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा हमें, ये 1.25 घंटे से कोई मजा नहीं आया, तो फिर से आप हमारे लिए अपना टाइम स्पेयर करना। जरूर सर, रखेंगे जरूर। थैंक यू थैंक यू सर। टेक केयर। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल।